بجلی بل کے ستائے عوام کو فوری طور پر ریلیف دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ کل دوبارہ اجلاس ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کی عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت، کہا ایسا ممکن نہیں، عام آدمی مشکل میں ہو اور افسر شاہی منہ کی بجلی استعمال کرے، جلد بازی میں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ وزیر اعظم ہاؤس اور پاک سیکریٹریٹ میں بجلی کا خرچہ کم سے کم کیا جائے۔ اگر میرے کمرے کا اے سی بند کرنا پڑا تو بے شک بند کرتے ہیں۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں پر عوام کا میٹر شارٹ۔ ملک بھر میں شہری تیسرے روز بھی سڑکوں پر شہر شہر احتجاجی مظاہرے، ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ اضافی ٹیکسز سے تاجروں کی بھی چیخیں نکل آئیں۔ 20 سے 30 ہزار تنخواہوں میں گھر کے خرچہ چلائیں، بچوں کی فیس دیں یا بجلی کے بل ادا کریں۔ حکومت کی جانب سے ظالمانہ ٹیکس کے خلاف شہریوں کی خودکشی کی دھمکی۔ بجلی کے بل ادا نہ کرنے کا فیصلہ، حکومت ہمارے حال پر رحم کرے۔ مہنگائی کی چکی میں پسے شہریوں کی دہائیاں۔ جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 2 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ جماعت اسلامی کے یوم تاسیس سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خطاب میں کہا، آج بھی قومی اسمبلی، سینٹ، وزارتوں میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے بیٹھے ہیں۔ ملک میں مہنگائی معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے ہے۔ حکمران نے شوگر ملز اور جائیدادوں میں اضافہ کیا۔ اگر کسی قوم پر ایٹم بم استعمال ہو تو وہ اٹھ سکتی ہے، لیکن اخلاق تباہ ہو جائے تو کبھی نہیں اٹھ سکتی۔ خدشہ ہے بجلی کے بلوں پر احتجاج فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے، بلوں میں اضافہ فوری واپس کیا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا ہم نے مذاکرات کا وعدہ کیا تھا اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ کراچی کو وعدہ کی ذمہ داری سے دور اور باہر رکھا گیا۔ فوری ریلیف کے اقدامات کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا، ملک تیزی سے افراتفری کی جانب جانے لگا ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ عوام کی پہنچ سے نکل گیا۔ سولہ مہینے موج میلہ کرنے والے اور کپڑے بیچ کر ریلیف دینے والے عوام کو تکلیف دے کر لندن بھاگ گئے۔ بڑے لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور خود سارا غریبوں کے بلوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگلے مہینے پیٹرول اور بجلی کا بل آنکھ پر پیٹرول ڈالے گا۔ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں، اس سے زیادہ اہم اور سنگین مسئلہ اگلے مہینے لوگوں کے لیے پیٹرول اور بجلی کا بل ادا کرنا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا بیان۔ چیئرمین تحریک انصاف کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے لا تعلقی کا اظہار۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور سمیت پوری جی آئی ٹی ٹیم نے سابق وزیر اعظم سے سوالات کیے۔ جی آئی ٹی نے پوچھا، 9 مئی کے بارے میں آپ کی جانب سے اشتعال دلانے کے شواہد موجود ہیں؟ بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا، میں گرفتار ہو گیا تھا، کسی کو فون کر کے اشتعال نہیں دلایا، کسی کو نہیں اکسایا، سب اپنے طور پر کنٹونمنٹ کے علاقے میں گئے۔ جلاؤ گھیراؤ میں میری پارٹی کے کارکن نہیں، کوئی اور افراد تھے۔ بانی تحریک انصاف 1000 سال جیل میں رہنے کو تیار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل اور قانونی امور کے ترجمان نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں قید 22 دن ہو گئے، آئین کسی کو غیر قانونی گرفتاری کی اجازت نہیں دیتا۔ اعلیٰ عدلیہ نے انہیں قید کرنے کا فیصلہ غلط قرار دے دیا تو جیل میں گزارنے دنوں کا ازالہ کون کرے گا؟ قوم ایک لمحہ سابق وزیر اعظم کو قید نہیں دیکھنا چاہتی۔
दरियाए सतलुज ने अवाम का जीना महाल कर दिया। हर तरफ पानी ही पानी, घर फसलें सब तबाह। सैलाबी रेलों के बायस पाकपतन, कसूर, बहावल नगर, बहावलपुर, लोधरा और रिहाड़ी की दरियाई पट्टी पर सैकड़ों देहात जेर आब। किसान साल भर की मेहनत जाया होने पर परेशान। इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में सहूलियात का भी फुकदान। तैयारों मददगार मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती अमदाद के मुंतजिर। रिलीफ कैंप ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुतासरीन सरापा एहतजाज। और अफगानिस्तान की टीम आसान नहीं, इसके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं। लोगों को लगता है अफगानिस्तान आसान हरीफ है, हकीकत ऐसी नहीं। 3 मैचेस जीतकर जो मोमेंटम मिला है, इससे इत्मीनान मिलेगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की अफगानिस्तान से वनडे सीरीज जीतने के बाद गुफ्तगू। कहा, जब आप नंबर 1 बनते हैं तो खुशी होती है। ये पूरी टीम की मेहनत और परफॉर्मेंस का नतीजा है। पहले भी नंबर 1 हुए थे मगर फिर नीचे आए, अब दोबारा टॉप पर हैं। हमने सारे मैचेस अच्छे खेले हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली निर्खों और बिजली बिलों पर इजलास हुआ। इजलास में अवाम को रिलीफ देने का फैसला ना हो सका। इजलास के जारी एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे पर हंगामी इजलास का पहला दौर हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को जुलाई के बिजली के बिलों में इजाफे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा 48 घंटे में बिजली के जायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दाम मुरतब करके पेश किए जाएं। जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसे इकदाम उठाएंगे जिससे मुल्की खजाने पर इजाफी बोझ ना हो और सारिफीन को सहूलत मिले। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मुतलका वजारतें और मुतलका अदारे मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और अदारों की मुकम्मल तफसील फराहम करें। मैं आम आदमी की नुमाइंदगी करता हूँ। वज़ीर आज़म हाउस और पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, अगर मेरे कमरे का AC बंद करना पड़ा तो बेशक बंद कर दें। बिजली की बचत के इकदाम के नफाज और जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़रा आला और साथ तफसीली मशावरत भी कल की जाएगी। तकसीम कार कंपनियां बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करें। बिजली के शोबे की असलाहत और कलील वस्त और तवील मुद्दती प्लान जल्द अज जल्द पेश किया जाए। बिजली के बिलों में होशरबा इजाफा और भारी टैक्सेस के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ताजिर बरादरी समेत आम शहरी एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज में आवाम बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं और अरबाब इख्तियार से बिजली सस्ती करने का मुतालबा कर रहे हैं। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए शहरी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। तवक्कुआत से बढ़कर बिजली के बिल आने पर लाहौर के अवाम भी बिलबिला उठे। लाहौर में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शाहतरा के रिहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जलाए और महंगी बिजली पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। गुजरा शाह मुकीम में बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सों और बढ़ती कीमतों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। बिजली के बिलों में बेतहाशा टैक्सों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए, वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली के बिलों से बेजा टैक्सेस खत्म करने और बिजली के रेट्स कम करने तक बिल अदा नहीं करेंगे। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा फिलफोर वापस ले और शहरियों का माशी कत्ल बंद करे।
वापडा के जालिमाना इकदाम के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। वापडा के इजाफी बिलों के खिलाफ शहरियों ने KLP रोड सिंध और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक होने से मेन कराची हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन की हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली के बिलों से जालिमाना इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस सिंध जाने और पंजाब की तरफ आने वाली ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर हो रही है। जतोई शहर सुल्तान में अराई इत्तेहाद और जमात इस्लामी की जेर एहतमाम पेट्रोल बिजली गैस के जालिमाना टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा एडवोकेट सरदार जाहिद खान गोपांग ने कहा कि रियासत माँ जैसी है और बदकिस्मती से पाकिस्तान हुकूमत ने डकैत का रूप धार लिया है। जतोई अराई इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा मलिक असगर हुसैन ने कहा, हुक्मरानों की अयाशियों का बोझ अब गरीब अवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थे। एहतजाज में मुजाहिरीन ने बिजली गैस के बिल भी नजर आतिश कर दिए। जून में बिजली के महंगे बिल सखर में जहां जहां आए वहां वहां सखर के शहरी बाहर निकल आए। सखर में महंगे बिलों के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ घंटा घर पर धरने की शक्ल इख्तियार कर गया। शहरियों ने महंगे बिलों में रिलीफ का मुतालबा करते हुए सेप्को के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। आपको एक बार फिर बताते चले कि सखर में महंगे बिलों के खिलाफ शहरियों का शदीद एहतजाजी मुजाहरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ घंटा घर पर धरने की शक्ल इख्तियार कर गया। शहरियों ने महंगे बिलों में रिलीफ का मुतालबा करते हुए सेप्को के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। बिजली के भारी भरकम बिलों से बल्दिया उस्मा कराची भी परेशान हो गई और महाना 1.25 करोड़ रुपए की बचत का नया मंसूबा तैयार कर लिया। कराची की 106 मरकजी शाहराहों पर लगे स्ट्रीट लाइट्स का माहाना बिल लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए आता है, जिसकी बचत के लिए बल्दिया उस्मा कराची ने अहम शाहराहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का फैसला किया। दूसरी जानिब माशी तज्जियाकारों ने बिजली के बिलों में फौरी कमी का नुस्खा भी बता दिया। माहिर माशियात फरूख सलीम का कहना है कि बिजली के बिलों में 30% मुख्तलिफ हुकूमती टैक्सेस हैं, जिन्हें कम करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। इस कमी को बराह रास्त टैक्स लगा कर पूरा किया जाए। इसके अलावा माशी तजियाकार खाकान नजीब ने गर्मी में आए बिलों को किस्त वार वसूल करने की तजवीज़ दी और बताया कि बिलों में एक हिस्सा 18% GST का है। इसमें कमी के लिए IMF से दोबारा बातचीत की जाए। अब आपको अपडेट दें कि जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बरोज हफ्ता 2 सितंबर को मुल्की हड़ताल का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के योम तासीस से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था, आज भी कौमी असम्बली सेनेट वजारतों में अंग्रेजों का साथ देने वाले बैठे हैं। मुल्क में महंगाई माशी दहशत गर्दों की वजह से है। हुक्मरानों ने शुगर मिल्स और जायदादों में इजाफा किया। अगर किसी कौम पर एटम बम इस्तेमाल हो तो उठ सकती है, लेकिन इखलाक तबाह हो जाए तो वो कभी नहीं उठ सकती। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि हैरान हूँ, पन बिजली की कीमत 6.94 रुपए है। नाअहल हुकूमत और इंतजामिया महंगा कोयला गैस और ऑयल दरामद करके रोज डाका डाल रही है। बिजली के बिलों ने आवाम को परेशान कर दिया है। कहा गया भाषा डैम क्यामत तक शदीद मुकम्मल ये नहीं हो पाएगा। अवाम के लिए बारूदी सुरंगें किसने बचाई हैं। सिराजुल हक का यह भी कहना था कि एक पंखा और 4 बल्ब चलाने वालों को 40,000 रुपए बिल आ गया। हुकूमत को खबरदार करते हैं, बिजली का फैसला वापस लें। जालिमाना फैसले को नहीं मानते। कराची से चित्राल तक बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर इजाफा वापस ना लिया तो हाथ गिरे बांध तक पहुंच जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि कराची से चित्राल तक जालिमाना फैसलों और बिजली की कीमतों के खिलाफ 2 सितंबर को हड़ताल करेंगे।
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ بجلی کے بلوں پر احتجاج فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے، بلوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا، ہم نے مذاکرات کا وعدہ کیا تھا اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ کراچی کو معاہدہ کی ذمہ داری سے دور اور باہر رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کا دباؤ کے الیکٹرک کے مالکان پر نہیں صارفین پر آ رہا ہے۔ فوری ریلیف کے اقدامات کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ حیدرآباد میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے تاجر احتجاج پر مجبور ہیں۔ 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بل وہی آ رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایوانوں میں بات کی، اب بھی کریں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ملک تیزی سے افراتفری کی جانب جانے لگا ہے۔ بجلی کے بلوں میں اضافہ عوام کی پہنچ سے نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2000 بجلی کے بل میں 48% ٹیکس ہے۔ دنیا میں بجلی استعمال کرنے پر ٹیکس نہیں ہوتا۔ بجلی کے بل پر 13 قسم کے ٹیکسز ہیں۔ لوگوں میں بغاوت کا رجحان رہا اور لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کا مزید کہنا تھا کہ ملک سول نافرمانی کی جانب جانے لگا ہے۔ اگر یہی رجحان رہا تو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنے گی۔ ملک کے تاجروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ملک کے کئی شہروں میں حالیہ دنوں کے دوران بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف عوام نے احتجاج کیا تھا۔ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 16 مہینے موج میلہ کرنے والے اور کپڑے بیچ کر ریلیف دینے والے عوام کو تکلیف دے کر لندن بھاگ گئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ بڑے لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور بہت سارا غریبوں کے بلوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگلے مہینے پیٹرول اور بجلی کا بل آگ پر پیٹرول ڈالے گا۔ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں، اس سے زیادہ اہم اور سنگین مسئلہ اگلے مہینے لوگوں کے لیے پیٹرول اور بجلی کا بل ادا کرنا ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ لوگ بغیر کسی لیڈر اور جماعت کے سڑکوں پر آ گئے ہیں اور ستمبر ستمگر ثابت ہو سکتا ہے۔ 16 مہینے موج ملا کرنے والے اور کپڑے بیچ کر ریلیف دینے والے عوام کو تکلیف دے کر لندن بھاگ گئے۔ نگران حکومت کیا کرے گی؟ ان کا کہنا تھا کہ عوام کا نام ہی ریاست ہے، عوام سول نافرمانی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بجلی کا بل دگنا ہو گیا اور اگلے مہینے شاید یہ مسئلہ سنگین ہو جائے۔ عوام کا رد عمل سیاسی نہیں قدرتی ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں۔ وہ آٹا خریدے، بجلی کا بل دے یا مکان کا کرایہ، اور بچے کی فیس کیسے ادا کرے؟ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ سارے الیکٹرک کمپنیوں نے اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ بھی خوف کے مارے ہٹا دی۔ فائلر اور نان فائلر میں کوئی فرق نہیں رہا، دونوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ بھوک سے ہمارے لوگ ریسکیو 15 پر کال کر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ گرے گا وہ سارا بوجھ عام آدمی پر پڑے گا۔ اب آپ کو بڑی اپڈیٹ سے آگاہ کریں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے قائم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے جمعے کے روز اٹک جیل میں چیئرمین تحریک انصاف سے 6 مقدمات میں تفتیش کی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور سمیت پوری جی آئی ٹی ٹیم نے سابق وزیر اعظم سے سوالات کیے۔ جی آئی ٹی نے پوچھا، 9 مئی کے بارے میں آپ کی جانب سے اشتعال دلانے کے شواہد موجود ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ میں گرفتار ہو گیا تھا، کسی کو فون کر کے اشتعال نہیں دلایا۔ جی آئی ٹی نے سوال کیا، ایسی ویڈیوز اور کلپس ہیں جن میں مظاہرین آپ کا نام لیتے نظر آتے ہیں؟ جس پر سابق وزیر اعظم نے جواب دیا کہ کسی کو نہیں اکسایا، سب اپنے طور پر کنٹونمنٹ کے علاقے میں گئے۔ جلاؤ گھیراؤ میں میری پارٹی کے کارکن نہیں، کوئی اور افراد تھے۔ جی آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جمعے کو آدھا گھنٹہ اٹک جیل میں تفتیش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر 9 مئی سے متعلق دہشت گردی کے 6 مقدمات درج ہیں۔ ناظرین ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے قائم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے جمعے کے روز اٹک جیل میں چیئرمین تحریک انصاف سے 6 مقدمات میں تفتیش کی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور سمیت پوری جی آئی ٹی ٹیم نے سابق وزیر اعظم سے سوالات کیے۔ جی آئی ٹی نے پوچھا کہ 9 مئی کے بارے میں آپ کی جانب سے اشتعال دلانے کے شواہد موجود ہیں؟ جس پر چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ میں گرفتار ہو گیا تھا۔
यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और कानूनी अमूर के तर्जुमान नईम हैदर पंचोता का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई 1000 साल भी जेल में रहने को तैयार हैं। एक बयान में नईम हैदर पंचोता का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में कैद 22 दिन हो गए। आला अदलिया ने उन्हें कैद करने का फैसला गलत करार दे दिया तो जेल में दूसरे दिनों का अजाला कौन करेगा। एक बयान में नईम हैदर पंचोता का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में कैद 22 दिन गुजर गए। आला अदलिया ने उन्हें कैद करने का फैसला गलत करार दे दिया तो जेल में गुजारे दिनों का अजाला कौन करेगा। नईम हैदर पंचोता का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई 1000 साल जेल में रहने को तैयार है, लेकिन कौम उन्हें एक लम्हा जेल में नहीं देखना चाहती। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को ऐसे फैसले में गिरफ्तार किया गया जिसमें कानूनी तौर पर 1000 गलतियां हैं। आइन किसी की गैर कानूनी गिरफ्तारी की इजाजत नहीं देता है। रानीपुर में पीर की हवेली में तशद्दुद से कमसन बच्ची फातिमा की हलाकत केस के 4 मुलजिमान को पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक रिहा किए जाने वालों में एसएचओ अमीर चांद, डॉक्टर फतेह मेमन, डॉक्टर अली हसन वसान और कंपाउंडर इम्तियाज मेरासी शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया कि चारों मुलजिमान को बेगुनाही के सबूत पेश करने पर छोड़ा गया। चारों मुलजिमान ने अपनी बेगुनाही के सबूत डीएसपी अब्दुल कदूस कलोड़ को सरबराही में क्राइम कमेटी के हाजिरी में पेश किया। उन्होंने कहा कि चारों मुलजिमान ताहाल शामिल तफ्तीश हैं, लेकिन उन्हें पुलिस तहवील में रिहा कर चुकी है। पुलिस केस में नामजद मरकजी मुलजिम असद शाह की अहल खाना में शामिल अहलिया हिना शाह को भी ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि हिना शाह के वालिद फयाज शाह भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। चारों अफराद पर हकाइक छुपाने, जुर्म छुपाने और फराइज में गफलत के इल्जाम थे। मरकजी मुलजिम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में गुज़िश्ता रोज अदालत ने 3 रोज़ा की तोसीक की थी। कमसन फातिमा की मौत रानीपुर में पीर की हवेली में हुई थी, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई थी। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद को दहशत गर्दी के इल्जाम में 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 31 साल पाकिस्तानी डॉक्टर ने दहशत गर्द तंजीम दाइश के लिए काम करने के इरादे का इतराफ कर लिया है। पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद मिनीसोटा के मेडिकल कंपनी के लिए काम करते थे। मोहम्मद मसूद H1B वीजे पर अमरीका आया था। जनवरी से मार्च 2020 में दहशत गर्द तंजीम दाइश में शमूलियत और इसके लिए उर्दन जाने के इरादे का इजहार किया था। मोहम्मद मसूद को मार्च 2020 में मिनी एप्लस एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता साल अगस्त में पाकिस्तानी डॉक्टर ने इतराफ़ किया था कि वह दहशत गर्द तंजीम के मावनत का इरादा रखता था। अमरीकी FBI के ज्वाइंट नेटरस्ट टास्क फोर्स ने तहकीकात में हिस्सा लिया था। कराची के इलाके कयूमाबाद के करीब कार उलटने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। तफसीलात के मुताबिक हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। हादसे में एक शख्स जख्मी हालत में पाया गया। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी शख्स की शनाख्त 30 साल नबील के नाम से हुई, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 20 साल अमान के नाम से हुई है। आपको बता रहे हैं कि कराची के इलाके कयूमाबाद के करीब कार उलटने से एक शख्स जान से चला गया। तफसीलात के मुताबिक हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी शख्स की शनाख्त 30 साल नबील के नाम से हुई, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त
20 साल अमान के नाम से की गई है। भारत की आबी जारियत जारी। भारत ने दरियाई सतलुज में चौथा सैलाबी रेला छोड़ दिया, जिससे दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। सैलाबी रेलों के बाइस पाकपतन, कसूर, बहावल नगर, बहावलपुर, लोधरा और बिहाड़ी के दरमियानी पट्टी पर सैकड़ों देहात पहले ही जेर आब हैं और फसलें डूबी हुई हैं। मुतासरा इलाकों के मकीन घर बार छोड़कर कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। बहावलपुर में पानी के दबाव से एम्प्रेस ब्रिज का बंद टूट गया, जिससे 6 बस्तियों में पानी दाखिल हो गया है और फसलें मुतासिर होने लगी हैं। रेला अहमदपुर शर्किया के दरियाई बेल्ट की तरफ बढ़ रहा है। कबोला शरीफ में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां तेजी से जारी हैं। दरियाए सतलुज के मुकाम पर भोका पतन, नोरा रथ, कंड शम्स, मोजा ढर बस्तियां तेज पानी के रेले में डूब गए। अड्डा जमलीरा की हदूद में एक शख्स डूबकर जाँ बहक। पुलिस समेत रेस्क्यू 1112 की अमदादी सरगर्मियां सैलाब जदगान के लिए तेजी से जारी। पुलिस थाना कबोला के अफसर मलिक असलम ने कहा, मुतासरा इलाकों से अवाम को निकालने में दिन रात मदद कर रहे हैं। इलाके की अवाम ने पुलिस और रेस्क्यू की खिदमात को खूब सराहा। आपको बता रहे हैं कि कबोला शरीफ में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां तेजी से जारी हैं। दरियाए सतलुज के मुकाम पर भूखा पतन, नोरा रत, कंशम्स, मोजा ढर बस्तियां तेजी से पानी के रेले में डूबने लगी हैं। अड्डा जमलीरा की हदूद में एक शख्स डूबकर जाँ बहक। पुलिस समेत रेस्क्यू 1112 की अमदादी सरगर्मियां सैलाब जदगान के लिए तेजी से जारी हैं। पुलिस थाना कबोला के अफसर मलिक असलम ने कहा, मुतासरा इलाकों से अवाम को निकालने में दिन रात मदद कर रहे हैं। इलाके की अवाम ने पुलिस और रेस्क्यू की खिदमात को खूब सराहा। अवामी नेशनल पार्टी का जोड़े पुल जरार शहीद रोड पर शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद। चौधरी इखलाक सदर अंजुमन ताजरान लाहौर, साबिका उम्मीदवार पीटीआई लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का दोस्तों और खानदान समेत अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान। सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब अमीर बहादुर खान हूती ने प्रोग्राम की सदारत की। चौधरी इखलाक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं इंतहाई खुश हूँ कि मैंने अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। चौधरी इखलाक ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम पंजाब में अमीर बहादुर खान हूती के दस्तो बाजू बनकर पंजाब के अवाम की खिदमत करें। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद ताहिर अब्बास गिलानी ने भी कहा कि हम अमीर बहादुर खान हूती की क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हैं और हमने उनकी खिदमात को देखते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तकरीब के इख्तिताम पर अमीर बहादुर खान हूती ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हमारी पार्टी की अव्वलीन तरजीह ये है कि हम आवाम की खिदमत करें। हमारी पार्टी अदम तशद्दुद पर यकीन रखती है। अमीर बहादुर खान हूती ने जड़ावाला फैसलाबाद का वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हैं। इस मुल्क में बसने वाले अक़लियत भी ऐसे हकूक़ रखते हैं जैसे मुसलमान के हैं। तकरीब में अवामी नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पंजाब जनाब अमीर बहादुर खान हूती ने शमूलियती अरकान को मफलर और पार्टी की लाल टोपियां भी पहनाई। आईजी जेल खानाजात पंजाब मियां फारूक नज़ीर ने जेल सिक्योरिटी और असीरान को फराहम की गई सहूलियात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल अटक का अचानक दौरा किया। इस दौरे के दौरान आईजी जेल खानाजात ने अंदरून और बैरून सिक्योरिटी, किचन, अस्पताल, जोइनल वार्ड, कैदियों, हवालाती बैरक समेत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सिक्योरिटी और फराहम की गई सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानून के मुताबिक तमाम तर सहूलियात फराहम की गई। उनके कमरे में बेड, तकिया, बेड मैट्रेस,
मेज़, कुर्सी, एयर कूलर, एग्जॉस्ट फैन, जाय नमाज, अंग्रेजी तर्जुमे के साथ कुरान मजीद, मुताले के लिए 1 दर्जन के करीब किताबें, अखबार, चाय थर्मस, खजूरें, शहद और टिश्यू पेपर, परफ्यूम वगैरह मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए उनके वॉशरूम में वेस्टर्न कमोड, वॉश बेसन, बाथ सोप, एयर फ्रेशनर, तौलिया और टिश्यू पेपर मौजूद है। एक अपडेट देते चलें कि लेस्को डिवीजन गुलशन रावी की सब डिवीजन बन रोड एक और नाअहली मंजरियाम पर करंट लगने से एक ट्रेन ऑपरेटर जाँ बहक है। वाक़े में आए रोज इजाफा, मुतलका एसडीओ और लाइन सुपरिटेंडेंट ट्रेन ऑपरेटर से बिजली ठीक करवाने लगे। ट्रेन ऑपरेटर बिजली तो ठीक ना कर सका मगर करंट लगने से जाँ बहक हो गया। कीमती जानों का ज़या करने पर गुलशन रावी डिवीजन सबसे आगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा खसूसी मुबशर अली जंजुआ से। जी मुबशर, बताइएगा ये हलाकत क्या वाकया कैसे पेश आया है? देखिए 11 केवी जो लाइन है इस पे जो डिवीजन रावी रोड की सब डिवीजन है बांद रोड, यहाँ पे क्रेन ऑपरेटर थे काशिफ, जिनको ये हिदायत मुतलका एसटीओ और लाइन सुपरिटेंडेंट की जानिब से दी गई थी कि ये सप्लाई यहाँ पे दुरुस्त करके वापस आए या यहाँ पे ट्रांसफार्मर नस्ब करके वहां से वापस आए। दौरान ट्रांसफार्मर नस्ब करने या 11 केवी पे काम करने के दौरान जो काशफ क्रेन ऑपरेटर था, जिसको ये अहकामात है ही नहीं कि आप सप्लाई को दुरुस्त करें, उसको दुरुस्त करने पे मजबूर किया गया मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट की जानिब से, और उसको मौके पे ही करंट लगा और वहां पे वो जाँ बहक हो गया। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। लाहौर पुलिस की जानिब से एशिया कप मैचेस के दौरान कौमी और बैन अवी क्रिकेट खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और शायकीन क्रिकेट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 10 एस पीज, 36 डी एस पीज, 86 एस एच ओज, 445 अपर सबार्डेंट्स और 5000 से ज्यादा पुलिस के जवान मैचेस के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने कहा, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एशिया कप के 3 मैचेस मुनक्किद होंगे। पहला मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के माबैन 3 सितंबर को मुनक्किद होगा। दूसरा 5 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के माबैन, जबकि 6 सितंबर को सुपर 4 मरहले का मैच खेला जाएगा। लाहौर पुलिस ने एशिया कप के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। आपको बताते चलें कि लाहौर पुलिस की जानिब से एशिया कप मैचेस के दौरान कौमी और बैन अवी क्रिकेट खिलाड़ियों, मैच ऑफिशल्स और शायकीन क्रिकेट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 10 एस पीज, 36 डी एस पीज, 86 एस एच ओज और 5000 से ज्यादा पुलिस के जवान मैचेस के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने कहा, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एशिया कप के 3 मैचेस मुनक्किद होंगे। पहला मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों के माबैन 3 सितंबर को मुनक्किद होगा। दूसरा 5 सितंबर को श्रीलंका और अफगानिस्तान के माबैन, जबकि 6 सितंबर को सुपर 4 मरहले का मैच खेला जाएगा। अंजुमन ताजरान लाहौर के नायब सदर आसिम महमूद और उनके भाई एहसन शाहिद समेत शहर के मुताबिक मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर ने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट प्याफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिम महमूद और एहसन शाहिद की तरफ से ग्रीन गैरिसन लाहौर में ब्रांच का एहतमाम किया गया था, जिसमें कोहिनूर न्यूज के CEO जनूद महमूद अंसारी, मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियाँ मेराज उर्फ शेरू समेत प्याफ ग्रुप के अहम रहनुमाओं, ताजिरों और कारोबारी बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट।
انجمن تاجران لاہور کے نائب صدر آصف محمود اور ان کے بھائی احسن محمود سمیت شہر کے مختلف مارکیٹوں کے صدور نے پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن فرنٹ یعنی پیاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس حوالے سے گرین گیریزن لاہور میں ایک برنچ کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں کوہ نور نیوز کے CEO جنید محبوب انصاری، معروف سیاسی و سماجی شخصیت میاں معراج عرف شیرو سمیت پیاف گروپ کے اہم رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ برنچ میں پیاف کے چیئرمین فہیم الرحمان سہگل، ساٹھ چیمبر آف کامرس کے نائب صدر انجم نثار، صدر فیڈرل چیمبر آف کامرس عرفان اقبال شیخ، لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری، صدر انجمن تاجران خالد پرویز، سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں محمد علی، خدمت گروپ ہال روڈ کے صدر بابر محمود، صدر انجمن تاجران انارکلی محمد اشرف بٹی، بلاول چٹھا، میاں معراج الہی، رانا اکمل، ملک عثمان، باؤ عرفان، نعیم خان، ذیشان سہیل ملک، خالد گجر، حاجی انعام، حاجی زاہد محمود، عامر محمود، چودھری ایوب، نبیل محمود، میاں علی شواق، فہد شہباز خان، حاجی انجمن فاروق، فیاض بٹ، سہیل کریم، زین الہی، خواجہ وسیم گلشن، پیاف گروپ کے رہنماؤں کی طرف سے عاصم محمود، احسن شاہد سمیت دیگر مارکیٹوں کے صدور کی پیاف گروپ میں شمولیت کو خوشائند قرار دیا۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ان کی شمولیت سے گروپ مزید مضبوط ہوگا۔ کوہ نور نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے پیاف کے صدر و مرکزی چیئرمین فہیم الرحمان سہگل کا کہنا تھا لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور پیاف گروپ کامیابی حاصل کرے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فہیم الرحمان سہگل چیئرمین پیاف۔ آج یہ عاصم صاحب نے جوائن کیا پیاف کو، اس حوالے سے یہاں پہ ایک برنچ تھا تو ہم یہاں آئے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بہت ساری الیکشنز کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی کمپین کا کیا صورتحال ہے۔ تو اس وقت DGTO کے جو رولز آئے ہیں اس کی سارے لوگ اپنے نظر کے مطابق انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ ہوگا وہی جو ہماری لاہور چیمبر کی EC میں اپروو ہو چکا ہے، الیکشن شیڈیول اپروو ہو چکا ہے، 28-29 کو الیکشن ہونے ہیں، اس حوالے سے ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ صدر فیڈرل چیمبر آف کامرس عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ پیاف نے ہمیشہ کاروباری برادری اور تاجروں کی بہتری کے لیے کام کیا۔ میں عرفان اقبال شیخ، پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ آج ہمیں زورانہ دیا تھا ہمارے بھائی عاصم صاحب نے، اور سارا ہال روڈ، سارا آپ کا ہمارا شالم مارکیٹ اور ساری اس کی قیادت یہاں پہ سب لوگ آئے ہیں اور بہت اچھا ایک اپنا زورانہ دیا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری نے کہا کہ DGTO کی طرف سے جیسے ہی چیمبر آف کامرس کے الیکشن کا شیڈول جاری کیا جائے گا، پیاف گروپ اس میں بھرپور شرکت کرے گا۔ ظفر محمود چودھری، سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس نے DGTO کے لیٹر اور گورنمنٹ کی پلاننگ کے حوالے سے اپنا شیڈول اناؤنس کر دیا، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد کے فائنل فیصلے کا، اور DGTO نے جو پرپوزل دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اسپیشلی جو سیکرٹری صاحب ہیں ان کو، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیٹیگوریکلی کلیئر اناؤنسمنٹ کریں کہ الیکشن کب ہونا ہے۔ الیکشن نومبر دسمبر میں بھی ہو سکتا ہے، الیکشن سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، مگر ابھی تک ہم اس امید پہ ہیں کہ الیکشن ہوگا۔ جی محمد اشرف بٹی، صدر آل پاکستان انجمن تاجران اور صدر انارکلی بازار لاہور۔ آج جو ہمارا کٹ ہے یہ الیکشن کے بارے میں ہے۔ جو چیمبر کا الیکشن ہو رہا ہے نا، اس میں پیاف فاؤنڈر گروپ دونوں مل کے لڑتے ہیں، تو آپ پیاف کا اکٹھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس دفعہ بھی الیکشن جیسے ہمیشہ جیتے ہیں اس دفعہ جیتیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد پرویز، گزارش ہے کہ آج کا دن یہ ہماری پیاف کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کا آغاز سمجھ لیں اس کو۔ اس دن لوگوں کی جوک در جوک تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے، اور بہت اس وقت ایفیشنسی کے ساتھ چل رہے ہیں سارے، اور آج کا فنکشن بھی اسی کی ایک کڑی ہے، تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں انجم نثار، فارمر پریزیڈنٹ LCCI یا PCCI، اور اس وقت میں سار کا وائس پریزیڈنٹ۔ آج الحمدللہ احسن شاہد صاحب اور عاصم شاہد صاحب، انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آبکاری مارکیٹ کے سائنٹیفک انسٹرومنٹس ایسوسی ایشن اور جو ڈسپوزیبل ایسوسی ایشن کے ساتھ کثیر تعداد میں دوستوں نے
प्याफ के अंदर शमूलियत का इख्तियार की। हम उन्हें वेलकम करते हैं और मैं समझता हूँ इससे इंशाअल्लाह लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी मजबूत होगी, प्याफ मजबूत होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली मियाँ साहब का सदर लाहौर चैम्बर। आज आबकारी रोड से जनाब आसिम साहब ने, एहसन साहब ने और उनकी टीम ने यहाँ पे प्याफ के ऑनर में, मियाँ इंजन साहब के ऑनर में एक यहाँ पे ब्रंच रखा था। तकरीबन 100 बंदे का उन्होंने इंतज़ाम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये मकबूलियत है प्याफ की, ये मकबूलियत है अंजम निसार की और ये मकबूलियत आसिम साहब की, हसन साहब की कि आज तकरीबन 250 बंदे का यह फंक्शन हो गया। सदर खदमों के पहाड़ रोड बाबर महमूद। आज माशाल्लाह जी लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों की तंजीमों ने प्याफ में शमूलियत की है। ये इस बात का सबूत है कि लोगों को ग्रुपों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ काम देखते हैं। मियाँ अंजन साहब पिछले कई सालों से, इरफान इकबाल साहब, मियाँ मोहम्मद अली साहब और चेयरमैन फ़हीम सहगल साहब जिस तरह ताजरों के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं कामों को देखते हुए लोग जोक दर जोक प्याफ में शामिल हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे प्याफ फाउंडर अलायंस इस दफ़ा भी इलेक्शन विन करेगी इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोहिनूर टीवी का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग आए और आपने हमें कवरेज दी। आज हमने एक गुलदस्ता सजाया हुआ था प्याफ का, तो हमने ब्रांच पे इनको इनवाइट किया हुआ था। हमारी डिस्पोजेबल मार्केट ने और साइंटिफिक मार्केट ने। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के एक स्कूल की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है जिसमें खातून टीचर ने इंसानियत की धज्जियां बखेर दी। भारतीय टीचर के मुताबिक मंजरियाम पर आने वाली इस वीडियो में भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश के स्कूल में तरिफ्ता त्यागी नामी टीचर को देखा गया है जो तालिब इल्मों को 7 साल बच्चे मोहम्मद अल्तमश को थप्पड़ रिसीव करने का कह रही हैं। वीडियो में टीचर कहती हैं, मैंने कह दिया जितने मुसलमान बच्चे हैं वो यहाँ से चले जाएं। वीडियो में कैमरे के पीछे से एक मर्द की भी आवाज आती है जो टीचर की बात से मुत्तफिक है और कहता है कि इससे तालीम खराब हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम आसान नहीं, इसके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं। लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान आसान हरीफ है, हकीकत ऐसी नहीं। 3 मैचेस जीतकर जो मोमेंटम मिला है इससे एतमाद मिलेगा। अफगानिस्तान से वनडे सीरीज जीतने के बाद गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम ने कहा कि जब आप नंबर 1 बनते हैं तो खुशी होती है, ये पूरी टीम की मेहनत और परफॉर्मेंस का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पहले भी नंबर 1 हुए थे मगर फिर नीचे आए, अब दोबारा टॉपर हैं, हमने सारे मैचेस अच्छे खेले। बाबर आजम का कहना है कि टीम में कोई एक दूसरे को बैक कर रहा है, अगर बैटिंग नाकाम होती है तो बॉलर्स काम करके जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।